Okay, in the previous class, can you see the screen? Yes, sir. In the previous class, we were solving this question from trusses, and we had to find all the forces in the beam. इसमें जितने भी members हैं, you have to find all the forces in all the members, and you have to indicate the magnitude and nature of forces on the diagram of the truss. So what you have to do in this part, that means indicating the magnitude and nature of forces on the diagram of the truss. So first of all, let me give you the answer, the complete list of forces for this question. Did you solve it at home? इसको solve किया क्या आपने? यस सर, ट्राई तो किया था। आंसर निकाल के रखे हुए हैं मेंबर्स के फोर्सेस के? सर, 2 के निकाले, ज्यादा के नहीं निकाले। ठीक है, इसको जरा आप ट्राई करना. आई एम not going to pursue the complete question in class. I will give you the answers. यस सर। ये फिगर है अपने पास. So first of all, let me list down the values of individual forces like this. But once you have found the answer, you can simply indicate in a figure also. Now mark the nodal nomenclature or the names of the nodes. This is A, B, C, D, E. Okay. Force in AB is compressive. So first of all, let us mark the nature of the force by showing two arrows on each beam. Compressive load means that the beam will be pressed inwards. Tensile means the member will be stretched outwards. AE, tensile. So since it is tensile, the force will be like this. Then BC, compressive. Compressive means pressing inwards like this. Then CD is also compressive. CE is tensile. CE, this one, tensile. ED, tensile. And finally, there is one more remaining. Let me see. BE. BE is also tensile. So this is how you indicate the nature of forces. And for the magnitude, AB is 83.72. Compressive. AE 41.86. BE 37.53. BC 60.62. Then CD 89.49. CE 31.75.
and ED 44.74. This is your final answer for this question. इस तरह से देना है, ठीक है? And इन सब में आपको अलग से यूनिट नहीं लिखनी थी, क्योंकि अपने पास फिगर में बनाते टाइम जगह कम है, अपन को नेचर भी दिखाना है, उसका टेंसाइल है, कंप्रेसिव है, बोलना भी है, वैल्यू भी लिखनी है। तो एक किलो न्यूटन हर जगह लिखने की बजाय, once you draw the figure, you can simply include a remark near the figure: all forces in kilonewton. Now this is your perfectly acceptable answer, complete answer. फिगर में मार्क करके सारा नेचर वेचर के साथ बताने को कहा था। दिस इज योर आंसर, ठीक है? इसको नोट कर लो, और या फिर लेक्चर का जो टाइम है वो नोट कर लो, उसके बाद आप इस पॉइंट पे आके वापस से इसको आंसर को रिट्रीव कर सकते हो। एनीवे, लेट अस नाउ मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। इस क्वेश्चन को पढ़ो, 15 नंबर का क्वेश्चन है। ओपन बेल्ट ड्राइव connects two pulleys of this and this diameter on parallel shaft 4 meter apart. Maximum tension in belt is this much. Coefficient of friction is this. The drive pulley of 120 centimeter runs at 200 RMP दिया हुआ है. This is RPM. Calculate the power transmitted and torque exerted on the driven shaft. सर ऐसा एक सेम क्वेश्चन आपने कराया भी था। ये तो ऐसे, हाँ, इस टाइप के क्वेश्चंस तो अपन ने क्लास में डिस्कस किए ही हैं बेल्ट ड्राइव के। यस सर, सेम ऐसे ही कराया था, अपार्ट वाला, और उसमें आरपीएम भी था। हाँ, तो आप बताओ कैसे करेंगे अब इसको। यू टेल मी स्ट्रेटजी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या करने का है इसमें बताओ। पावर ट्रांसमिटेड और टॉर्क एक्सर्टेड ऑन द ड्रिवन शाफ्ट आपको निकालना है। सबसे पहली बात तो है, पावर ट्रांसमिटेड और टॉर्क एक्सर्टेड का कोई फॉर्मूला होगा। डू यू नीड टू रिमेंबर दैट फॉर्मूला? क्या इस केस में फॉर्मूला रटने की जरूरत है, या आप एक सिंपल सा रफ फिगर बना के फॉर्मूला उसमें से फटाक से निकाल सकते हैं? सर निकाल सकते हैं इसमें फॉर्मूला अपन। चलो अब मैं आपको दिखाता हूं। अपन को टॉर्क ट्रांसमिटेड और पावर का फॉर्मूला चाहिए बेल्ट ड्राइव के लिए, ठीक है? We know that whenever belts are driving pulleys, one side of the belt will be tight side and another side will be slack side, ठीक है? तो अभी ये ड्राइवर है, ड्रिवन है, अभी मेरे को नहीं पता। मैं तो ये बोल रहा हूं कि, अच्छा, ये भी बताना पड़ेगा ड्राइवर है कि ड्रिवन है, दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे टाइट साइड और स्लैक साइड चेंज हो जाते हैं। तो लेट मी से कि ये बड़ी वाली पुली है, क्योंकि इसमें देखो इन्होंने क्या दे रखा है, दो पुलिस की बात कर रखी है, एक है 120 सेंटीमीटर एंड अनदर इज 50 सेंटीमीटर, ठीक है? और ड्राइवर पुली जो है, ये ड्राइव पुली लिखा हुआ है, इट शुड बी एक्चुअली ड्राइवर पुली। ड्राइवर पुली जो है वो बड़ा वाला है, 120 सेंटीमीटर डायमीटर पुली इज द ड्राइवर पुली। So if this is the driver pulley and it is, let us say it is rotating in this direction, तो मेरे को ये बताओ, मैं इसको ये डिमार्केट कर रहा हूं कि इस ऊपर तो टेंशन T1 है और नीचे टेंशन T2 है। मेरे को अभी सिर्फ इतना बता दो कि T1 और T2 में से टाइट साइड टेंशन कौन सी है, स्लैक साइड टेंशन कौन सी है? सर T1 टाइट साइड और T2 स्लैक साइड है। यस, दिस इज टाइट साइड एंड दिस इज स्लैक साइड। बट इफ यू टॉक अबाउट द ड्रिवन पुली, तो ये चीज चेंज हो जाती है। आई एम गिविंग यू, ये इसी तरीके से होगा ना, ठीक है?
यस सर। अच्छा, वो क्रॉस बेल्ट में होता है। ओके, लेट अस डिस्कस दैट, लेट अस नॉट डिस्कस इट राइट नाउ। अभी तो सिर्फ इतना कर लो, यू टेक द ड्राइवर पुली, यू डिटरमाइन, you give it a direction of rotation and you decide which is the tight side pulley. Now, as we were discussing, we wanted to know what is the expression for torque and what is the expression for power. Let us say the radius is r. Okay. Now tell me, torque कैसे निकालेंगे इसमें? चलो, पुल्ली और बेल्ट को छोड़ो। R T1 - T2 यस, करेक्ट, वेरी गुड। टॉर्क। ये कैसे आया आपको? ये याद था या आपने कोई लॉजिक लगाया इसमें? आंसर इज लॉजिक राइट। में क्या लॉजिक है बताओ? सर T1 जो है वो रेडियस के ऊपर, मतलब वो है, क्या कहते हैं उसको, फोर्स है, ठीक है। मतलब हाँ, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है ना, टाउ। ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस R ले ली और T1 उसके ऊपर से फोर्स जा रहा था। वेरी गुड। T1 टाइट साइड में से स्लैक साइड माइनस होता है हमेशा। ठीक है, इसको थोड़ा और आपके कॉन्सेप्ट को मैं पॉलिश कर देता हूँ। आपने सही कहा है, योर कॉन्सेप्ट इज ऑलमोस्ट राइट, बट लेट मी जस्ट गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ अ पॉलिश। मैं ये कह रहा हूँ कि T1 मेरा टाइट साइड टेंशन है और T2 मेरा स्लैक साइड टेंशन है। तो इसका मतलब मैं टाइट और स्लैक से सिर्फ इतना समझता हूँ कि T1 इज ग्रेटर देन T2। दिस इज द सिंपल लॉजिक। ठीक है। एंड एज यू राइटली सेड, यू कैन ड्रॉ अ रेडियस exactly perpendicular to the tangential tensile force. Similarly, you can draw a radius here also. Both are R. Now, if you forget about belts and pulleys, and if I simply tell you that there is a circular object and there is a tangential force F and the radius of the circular object is r. What is the rotational torque in the clockwise direction acting on the circular body? Then you will say that the torque acting on the circular body is simply F into r. Now, using this logic, if you come back to your belt and pulley, there are two forces acting on the circular object, which is the pulley now. T1 into r will try to rotate this pulley in this direction, and T2 into R will try to rotate this pulley in this direction. So basically there are two torques acting now, torque 1 and torque 2, and both are opposite to each other. And the pulley will eventually start rotating with the resultant torque acting on the pulley. Resultant torque means the sum of both the torques. But since both the torques are opposite in direction, we will have to treat one of the torques as positive and one of the torques as negative. Now, since we know that eventually the pulley will be experiencing a torque tau1 minus tau2, that will become T1 minus T2 into R. How? Because tau1 is T1 into R and tau2 is T2 into R. Okay, this is how you calculate the torque. सर हाँ, सर ये आपने अभी FR वाला बताया, उसमें वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन कर रहा है, तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करे तो? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा तो ये फोर्स यहाँ को होगी, टॉर्क तो वही होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अच्छा। ठीक है ना? टॉर्क का क्या है? एक तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है, दैट इज सेंस ऑफ रोटेशन, एंड द मैग्नीट्यूड। तो वो डिपेंड करेगा कि फोर्स किस तरफ को फेस कर रहा है, उस डायरेक्शन में वो घूमने लग जाएगा। मैग्नीट्यूड तो तभी चेंज होगा जब या तो आप रेडियस चेंज करो या तो फोर्स चेंज करो। ठीक है? यस सर। सो दिस इज द डिस्कशन दैट गिव्स अस अ सिंपल फॉर्मूला। तो जैसा अभी ये बताया, ये अगर हल्का सा लॉजिक अगर आप मन में रख लो, तो आपको ये सब बना करके देखने की भी जरूरत नहीं है। यू कैन सिंपली लुक एट द फिगर एंड से कि हाँ, टॉर्क जो होगा T1 माइनस T2 इंटू आर होगा, बस काम खत्म। ओके,
नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर ट्रांसमिटेड? पावर ट्रांसमिटेड कैसे निकालते हैं? देखो, पावर एक ऐसी टर्म है आपके पूरे सिलेबस में जो कभी भी कहीं पर भी आ जाए आपके एग्जाम में, यू ऑलवेज रिमेंबर इट लाइक दिस, फोर्स इनटू वेलोसिटी। पुली, बेल्ट, चेन, इन सब चीजों को आप मन से हटा दो। यू जस्ट थिंक, whenever somebody asks me about power, I have to remember it is force into velocity. That's it. अब मोशन अगर लीनियर है, जैसे एक बॉक्स पे आपने फोर्स F लगाया एंड दैट बॉक्स स्टार्ट्स टू मूव विद द वेलोसिटी ऑफ v, what is the power being given to the box while you are pulling it? Power is force into velocity. That's it. तो अब लीनियर मोशन में तो फोर्स इनटू वेलोसिटी होती है। अब अगर रोटरी मोशन हो तो सपोज इट इज रोटेटिंग लाइक दिस, ठीक है, तो इस केस में पावर का क्या एक्सप्रेशन होना चाहिए आप बताओ? एफ इंटू ओमेगा, नो, टाउ इंटू ओमेगा। टॉ इंटू ओमेगा। फोर्स का रिप्लेसमेंट रोटरी मोशन में टॉ है, वेलोसिटी का रिप्लेसमेंट रोटरी मोशन में ओमेगा है, ठीक है। तो टाउ इंटू ओमेगा होगा, बस सीधी सी सीधी बात है। अब आपने टाउ तो निकाल ही लिया है, यस सर। तो पावर ट्रांसमिटेड के लिए करना क्या है? किसी तरीके से ओमेगा लेके आ जाना और टाउ इंटू ओमेगा कर देना, बस खत्म बात। ऐसे कर सकते हो। ऑल्टरनेटिवली एक और फॉर्मूला है, इफ यू डू नॉट लाइक दिस फॉर्मूला, तो मैं तो ये कहूंगा कि टॉ क्या चीज है? फोर्स इंटू रेडियस है, ठीक है। और ये फोर्स क्या है? ये टैंजेंशियल फोर्स है। और ये रेडियस कहाँ था? ये यहाँ था। यही तो है ना टॉ आपका, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर रेडियस। और आर इंटू ओमेगा क्या चीज होती है? लीनियर वेलोसिटी। तो ये यस सर। वापस से क्या चीज हो गई? ये फॉर्मूला वापस से एफ इंटू बी में ही कन्वर्ट हो गया। तो एफ तो आपका टेंजेंशियल फोर्स हो गया और बी क्या हो गई? बेल्ट वेलोसिटी। So if somehow you are able to find the velocity of belt while the two pulleys are connected, तो आप F कैसे लाओगे? अब आपकी पुल्ली के ऊपर दो टेंशन है, एक तो T1 है और एक T2 है, तो ये F क्या होगा बताओ? What will be the value of this F? टी वन माइनस टी टू। वापस से T1 माइनस T2, क्योंकि नेट फोर्स निकालनी है आपको, नेट फोर्स इनटू वेलोसिटी ऑफ बेल्ट। सो दिस फोर्स विल वंस अगेन बी T1 माइनस T2 एंड B विल बी वेलोसिटी ऑफ बेल्ट। तो पावर ट्रांसमिटेड के दो फॉर्मूले आ गए आपके पास। या तो आप सीधे सीधे ज्यादा दिमाग लगाए बना सिर्फ इतना याद रख लो, पावर ट्रांसमिटेड इज इक्वल टू टॉर्क एक्टिंग ऑन द पुली मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा ऑफ द पुली। और if you want to take it in terms of tensions, power transmitted can also be written as T1 minus T2 into velocity of belt. अब इन दो फॉर्मूले में सिर्फ इतना है, ये तो वेलोसिटी ऑफ बेल्ट है, लीनियर वेलोसिटी, और ये एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पुली है। बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपकी जो इच्छा है इनमें से किसी भी फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। एंड इन टेक्स्ट बुक्स अगर आप किताबें उठा करके देखोगे तो वो जनरली पावर ट्रांसमिटेड का ये फॉर्मूला यूज करते हैं। इसीलिए मैंने आपको ये बताया, क्योंकि आप अभी कभी रिवाइज करोगे तो बोलोगे यार हमको तो टॉ इंटू ओमेगा सिखाया था, ये कौन सा फॉर्मूला है? T1 माइनस T2 इंटू वी। आई जस्ट टोल्ड यू हाउ T1 माइनस T2 इंटू वी इज नथिंग बट द सेम एक्सप्रेशन स्लाइटली चेंज। सेम एक्सप्रेशन है ये, टॉ इंटू ओमेगा ही है T1 माइनस T2 इंटू वी, ठीक है। एनीवे तो अपन अभी फिलहाल टॉ इंटू ओमेगा यूज कर लेते हैं। किताब में जो एग्जैक्ट दिया हुआ है वो करना जरूरी नहीं है अपने लिए, बट नाउ लेट अस डिस्कस हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड ऑल दिस थिंग। तो अपने पास फॉर्मूले आ गए भाई, दोनों पावर और टॉर्क निकालनी है। और किस पे निकालनी है? ड्राइविंग पुली। कैलकुलेट द पावर ट्रांसमिटेड एंड द टॉर्क एक्सर्टेड ऑन द ड्रिवन शाफ्ट। आपको ड्राइवर शाफ्ट पे नहीं निकालनी है, उस शाफ्ट पे निकालनी है जिसपे 50 सेंटीमीटर की पुली लगी है, ठीक है। तो अब अपन इधर से ही स्टार्ट करते हैं अपन।
सबसे पहले तो मैं चाहूंगा टॉर्क निकालना, विच इज T1 माइनस T2 इंटू रेडियस कितना है आपका? 50। 50 लेना है आपको, ठीक है। 50 है तो इसका मतलब अभी चूंकि मैं फोर्सेस को न्यूटन में ले रहा हूं, तो क्या मैं 50 सेंटीमीटर को यूज कर सकता हूं क्या? नहीं सर। क्या लूंगा? 50 × 10⁻³ अरे सॉरी 2। नहीं। सर ये तो 50, डायमीटर है ना। हाँ 50। सबसे पहली बात तो है ये डायमीटर दे रखा है आपको, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये सेंटीमीटर में दे रखा है। यस सर। क्या करोगे बताओ? सर मीटर में मीटर में चेंज कन्वर्ट करना कर दें। पड़ेगा। मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एसआई तो यूनिट जीरो में। पॉइंट फाइव मीटर हो जाएगा सर। 0.5 मीटर, ठीक है, डायमीटर है। तो रेडियस कितना हुआ? 0.25 मीटर। 0.25 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर अपन को क्या करना है, T1 माइनस T2 इंटू आर चाहिए, जिसमें कि व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नो दैट द रेडियस हैज टू बी टेकन एज 0.25 मीटर्स। और देखिए टॉर्क निकालने के लिए T1 और T2 में क्या चीज दे रखी है? व्हाट इज दिस? द मैक्सिमम टेंशन इन द बेल्ट इज 1855.3 न्यूटन। ये क्या चीज है? सर T1। ये T1 दे रखा है आपको। सो T1 इज ऑल्सो गिवन इन द प्रॉब्लम एंड इट इज गिवन एज 1855.3, ओके, न्यूटन। व्हाट विल यू डू फॉर T2? T2 कहां से लाओगे बताओ? सर टाओ वाली इक्वेशन से। टाओ ही तो निकाल रहे हैं अपन, टाओ निकालना है, उसमें चाहिए T1 T2 और R। नहीं सर, अलग अलग। जैसे T1R = T2R। अरे T1R इक्वल टू T2R कैसे हो सकता है भाई? अगर टीवन T1, तो बड़ा है ना सर। T1 तो बड़ा है ना, टाइट यस साइड है सर। ना। तो T1 इंटू आर और T2 इंटू आर सेम कैसे होंगे? फिर तो पुल्ली घूमेगी नहीं। अगर दोनों मोमेंट सेम हो गए तो फिर तो पुल्ली का रोटेशन ही नहीं होगा ना। यस सर। बताओ T1 और T2 में T1 दे रखा हो, T2 कैसे निकालोगे? कोई फॉर्मूला है दूसरा, कुछ और चाहिए? वी नीड समथिंग एल्स नाउ। भाई बेल्ट ड्राइव्स के अंदर कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले तो आपको याद करने ही थे। उसमें एक फॉर्मूला ये वाला भी होता है, डू यू रिमेम्बर दिस? यस सर, टेंशन रेशियो वाला फॉर्मूला। टेंशन रेशियो इन बेल्ट ड्राइव इज इक्वल टू ई रेस टू पावर म्यू थीटा। और म्यू क्या चीज है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बेल्ट एंड पुली। वो दे रखा है, ये देखो, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपके प्रॉब्लम में दे रखा है, म्यू इज गिवन। तो अब अपन को ये पता लग गया कि भाई मेरे को T1 दे रखा है प्रॉब्लम में, T2 निकालना है, म्यू दे रखा है, कहीं से थीटा लिया। व्हाट इज थीटा हियर? दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ लैप और एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। अब देखो स्ट्रैटेजी क्या है, टॉ निकालना है, T2 नहीं मिल रहा। T2 कहां से मिलेगा? एक दूसरा फॉर्मूला हमें आता है, T1/T2 इज इक्वल टू ई रेस्ट पर म्यू थीटा। तो उसमें मैं T1 की वैल्यू रख दूं, थीटा की और म्यू की रख दूं, तो T2 मुझे मिल जाएगा। तो अब मुझे T1 पता है, म्यू पता है, थीटा क्या चीज है? एंगल ऑफ लैप है, ये तो बता दिया। बट नाउ यू नीड अनदर फिगर टू अंडरस्टैंड इट, इफ यू डू नॉट रिमेंबर इट। अगर अच्छी तरह से प्रैक्टिस और याद है, तब तो आप माइंड में भी इमेजिन कर सकते हैं। ओपन बेल्ट ड्राइव की बात कही गई है। अब आपको एक ये फिगर बना लेना चाहिए। दिस इज एन ओपन बेल्ट ड्राइव, ठीक है।
Larger pulley is driving, smaller pulley is being driven. ठीक है। अब देखो बड़े वाले पुल्ली पे तो एंगल ऑफ रैप भी कहते हैं, इस देयर इज अनदर नेम फॉर इट, एंगल ऑफ लैप, एंगल ऑफ कांटेक्ट और एंगल ऑफ रैप। रैप का मतलब जैसे रैपिंग पेपर होता है ना, किसी टॉफी के ऊपर रैप करते हैं पेपर को, उसी तरीके से आप ये देखोगे कि बेल्ट को पुल्ली के ऊपर रैप किया गया है ना, तो इसीलिए दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंगल ऑफ रैप। नाउ इन ओपन बेल्ट ड्राइव द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज मोर, 180 डिग्री से ज्यादा का एंगल ऑफ कांटेक्ट मिलता है बड़े पुली पे। ये देखो ये पूरा रैप या कांटेक्ट सरफेस है बेल्ट और पुली का। बट इन अ स्मॉलर पुली द एंगल ऑफ कांटेक्ट इज लेस। तो आपको छोटे वाले पुली पे सिर्फ इतना ही कांटेक्ट मिलेगा, समझ रहे हो। तो अब आपके पास में कंफ्यूजन की स्थिति ये हो गई, बड़े पुली का अगर मैं एंगल ऑफ लैप लेता हूं तब ये आता है थीटा, छोटे पुली का एंगल ऑफ लैप लेता हूं तो ये आता है थीटा। कौन सा थीटा लोगे, छोटे का लेना है कि बड़े का लेना है? सी सर इन दिस छोटे का छोटे का लेना है, ऐसा क्यों? ड्रिवन पे निकाल रहे हैं अपन सर, इसलिए। नहीं, ये रीजन नहीं है। टेंशन रेशियो का जो इक्वेशन है वो इस चीज पे निर्भर नहीं करता कि ड्रिवन पुल्ली पे निकाल रहे हो कि ड्राइवर पुल्ली पे निकाल रहे हो। अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, ये T1 और T2 दोनों पुल्लीज के लिए कॉमन ही होंगे ना? यस सर। यस सर। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि T1/T2 का रेशियो जो है वो मैं ड्रिवन पे निकालूंगा तो थीटा ड्रिवन का लूंगा, ड्राइवर पे निकालूंगा तो ड्राइवर पे लूंगा, क्योंकि उसमें थीटा दोनों के अगर अलग अलग होंगे तो T1/T2 का रेशियो भी चेंज हो जाएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इट इज इम्पॉसिबल। सो देयर मस्ट बी अ लॉ, एक ऐसा नियम होना चाहिए जो कि इसको गवर्न करे कि T1/T2 इक्वल टू ई रेस टू पावर म्यू थीटा में थीटा कौन सा वाला लिया जाता है हमेशा, चाहे ड्राइवर हो चाहे ड्रिवन हो, कोई मतलब नहीं उससे, थीटा हमेशा छोटे वाले का लिया जाता है। गॉट इट? नाउ यू रिमेंबर, थीटा ऑलवेज द स्मॉलर एंगल। ये याद रख लो आप, ठीक है। क्रॉस बेल्ट ड्राइव में ये प्रॉब्लम नहीं आती, क्यों? क्योंकि क्रॉस बेल्ट ड्राइव में ऐसे गया बेल्ट और ऐसे गया बेल्ट, उसमें एंगल ऑफ लैप या एंगल ऑफ रैप दोनों का सेम है, दोनों का एंगल ऑफ रैप यही आता है, इधर भी थीटा और इधर भी थीटा। नाउ दीज टू थीटा 1 एंड थीटा 2 बोथ आर सेम। तो क्रॉस बेल्ट ड्राइव में ये क्वेश्चन ही नहीं आता कि भाई कौन सा थीटा मैं लूं, इसमें कंफ्यूजन ही नहीं है, आप तो बस ये थीटा 1 थीटा 2 निकाल, जो भी निकालना है निकाल लो और उसको यूज कर लो। ओपन बेल्ट ड्राइव में प्रॉब्लम आती है, एंड ओपन बेल्ट ड्राइव में हमेशा स्मॉलर एंगल लेना होता है, और मैं रीजन आपको बता देता हूं। द रीजन इज more the contact with the belt and pulley, more will be the capacity to deliver torque and power, and lesser the angle of contact, lesser will be the capacity to deliver torque and power। तो अब आपने एक तो ज्यादा क्षमता वाली पुली ले ली जिसमें एंगल ऑफ लैप ज्यादा है, और एक कम क्षमता वाली पुली ले ली जिसमें एंगल ऑफ लैप कम है। तो दोनों पुली मिलकर के जो पावर डिलीवर करेंगे वो कितनी डिलीवर करेंगे, छोटे के बराबर वाली करेंगे या बड़े के बराबर वाली करेंगे? क्या लगता है आपको? सर छोटे के। छोटे के हिसाब से ही पावर डिलीवर होगी,
अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है कि ऐसा क्यों, तो उसका रीजन ये है कि भाई ये बड़ा पुल्ली तो ज्यादा पावर डिलीवर कर सकता है, ये तो खींच लेगा, लेकिन अब इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट कम होने के कारण यहां से फिर फिसल जाएगा। जिसका एंगल ऑफ कांटेक्ट ज्यादा है वो तो फिसलने की गुंजाइश कम रखेगा, और जिसका एंगल ऑफ कांटेक्ट कम है वो फिसलने की गुंजाइश ज्यादा रखेगा। तो अगर आपने बड़े पुल्ली से ज्यादा पावर ट्रांसफर करने की कोशिश भी करी, तो छोटा वाला तो उस काम में असक्षम है, वो तो उतनी पावर दे ही नहीं पाएगा। और जैसे ही आप इससे इसकी क्षमता से ज्यादा पावर लेने की कोशिश करोगे तो बेल्ट फिसलने लग जाएगी इसके ऊपर। बेल्ट यस सर समझ गया समझ में सर। आ गया ना आपको कि इसका रीजन क्या है? यस सर। The reason that the power transmission in an open belt drive is limited by the angle of theta of the smaller pulley is because due to smaller angle of contact, the frictional resistance between belt and pulley is smaller on the smaller pulley, and therefore if you try to derive more power out of it, it will start slipping. बड़ा वाला तो फिसलना चालू नहीं होगा क्योंकि उसका एंगल ऑफ लैप ज्यादा है। और इसी कारण अब मैं आपको एक, यहाँ पर हालांकि अपन थोड़ा सा डिविएट कर रहे हैं, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि मैं आपको एक इंजीनियरिंग एस्पेक्ट यहाँ पर बताऊं। कई बार क्या करते हैं, बेल्ट ड्राइव जो है वो पुरानी हो जाती है, ठीक है, जैसे कि आटे की चक्की वगैरह में जो है वो आपको कई बार ओपन बेल्ट ड्राइव मिलेगी। जहाँ पे गेहूं पीसा जाता है वहां पे ओपन बेल्ट ड्राइव और पुल्ली ड्राइव देखने को मिल सकती है आपको। तो अब यहाँ पर क्या होता है, कई बार ये काफी सालों के यूज के बाद आपकी पुली और बेल्ट घिस करके फ्रिक्शन कम हो जाता है, अब ये फिसलने चालू हो जाती है। तो अब आप क्या करोगे, पूरी की पूरी ड्राइव चेंज करोगे, बेल्ट चेंज करोगे? नहीं। उस केस में एक बहुत सिंपल सोल्यूशन कुछ इंजीनियर्स यूज करते हैं, दे यूज एन आइडल और आइडलर पुली। अब आइडलर पुली क्या होता है ये देखो आप, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये इंजीनियरिंग चीज सिखा रहा हूं आपको। ये वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे कि यार ये फिसलान क्यों हो रही है, क्योंकि छोटे पुल्ली में एंगल ऑफ लैप कम है, यही फिसल रहा है साला, फिसलेगा यही, ये नहीं फिसलेगा क्योंकि इसका एंगल ऑफ लैप ज्यादा है। तो अगर पुल्ली में फिसलान चालू होती है, अगर फ्रिक्शन का लॉस चालू होता है, तो वो गड़बड़ आपको छोटे वाले पुल्ली में ही नजर आएगी। तो अब क्या करें? तो अब अपन क्या करते हैं, इसमें एक छोटा सा इंटेलिजेंट काम करते हैं लोग, दे इंट्रोड्यूस एन आइडलर पुल्ली लाइक दिस। अब देखो इन्होंने क्या किया, बस अब क्या हो गया, ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, एंगल ऑफ लैप बढ़ गया आपका। यस सर। देखा आपने? तो आपको कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ा, बस एक छोटे से स्टेम के ऊपर एक खाली पुल्ली, छोटा सा, बस इस पुल्ली का काम सिर्फ इतना है कि ये बेल्ट को अंदर को दबा दे, तो ये दोनों पुल्लीज पे एंगल ऑफ लैप बढ़ जाएगा। ये देखो यहां पर भी बढ़ गया और छोटे वाले पर भी बढ़ गया। तो आपकी पुल्ली का जो फिसलने की प्रॉब्लम है, जो बेल्ट की जो स्लिपेज की प्रॉब्लम है, दैट गोज अवे। एंड दिस इज यूज्ड इन मेनी मेनी मैकेनिज्म्स ऑल ओवर द मैकेनिकल इंडस्ट्री। मैकेनिकल जो पुली ड्राइव्स होती हैं उसमें ये बहुत कॉमनली यूज्ड मैकेनिज्म है। सिंपली इंक्रीज द एंगल ऑफ लैप, एंगल ऑफ लैप बढ़ जाएगा तो फ्रिक्शनल कांटेक्ट बढ़ेगा, फ्रिक्शनल कांटेक्ट बढ़ेगा तो पावर ट्रांसमिशन भी बढ़ेगी आपकी। छोटा सा जुगाड़, ठीक है। सो एनीवे, नाउ यू नो द इंजीनियरिंग एस्पेक्ट एज वेल एज द फिलोसॉफी व्हाई T1 by T2 equal to e raised to power mu theta has to compulsorily always must use the smaller of the two angles। अब ये तो पता लग गया कि भाई ओपन बेल्ट ड्राइव में दो एंगल बनते हैं, एक बड़ा बनता है, छोटा बनता है, और छोटा वाला अपन को लेना है। अब छोटा वाला कैलकुलेट कैसे करेंगे? नाउ देयर इज अनदर प्रॉब्लम, ईदर यू रिमेंबर व्हाट इज द थीटा स्मॉलर फॉर ओपन बेल्ट ड्राइव, ये मैं आपको बता देता हूं। इसका मैं आपको आंसर बताऊंगा तो आप फिर थोड़ा सा मायूस हो जाओगे, बोले अब यार कितना याद रखे हम। थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 2 अल्फा, वेयर अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स आर माइनस आर अपॉन सी। ये लार्जर पुल्ली का है, ये स्मॉलर पुल्ली का रेडियस है, और ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है बिटवीन पुल्लीज।
बोलोगे तो एक के पीछे एक फॉर्मूले आते जा रहे हैं, कितने याद रखें। लेकिन ये बहुत सिंपल है, अगर आप भूल भी गए ये फॉर्मूला, तो मैं आपको बस अभी एक ट्रिक बता देता हूं जिससे कि आप इमिडिएटली 1 मिनट में इस फॉर्मूले को रिकॉल कर सकते हैं। इसको रटने की जरूरत नहीं है, इसको आप सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन के थ्रू याद कर सकते हैं। तो फॉर्मूला याद करने की बजाय ये कंस्ट्रक्शन याद रख लो, मैं ये बोल रहा हूं। पहले तो ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बना दो, ठीक है। यहां पर आपके बेल्ट का कांटेक्ट छूटा है, और यहां पर आपके बेल्ट का कांटेक्ट बना है। दिस इज हाउ द बेल्ट कॉन्टैक्ट्स आर मेड, ठीक है। यहां से वर्टिकल ड्रॉप किया, यहां से वर्टिकल ड्रॉप किया। आपको पता है ये थीटा आपको पता करनी है। इसको अल्फा डिक्लेयर कर दो, ये जो छोटा एंगल है, डिक्लेयर दिस एज अल्फा, ठीक है। एंड नाउ जस्ट ड्रॉ अ कंस्ट्रक्शन। ये जो बेल्ट है इसके पैरेलल यहां सेंटर से एक लाइन खींचो। इसका रेडियस है छोटे वाले का स्मॉल आर, बड़े वाले का रेडियस है कैपिटल आर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बेल्ट का कांटेक्ट छूट रहा है, सो दिस विल बी 90 डिग्री, दिस विल बी 90 डिग्री, दिस विल बी 90 डिग्री। तो यहाँ पर आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल मिलता है। दिस इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस सी। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल कितना होगा? सर कौन सा? ये वाला। ये भी अल्फा ही होगा। ये भी अल्फा ही होगा। अब देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? या इस साइन। ट्रायंगल में साइन अल्फा जो है वो कितना होगा, ये बता दो मुझे। ये कितना है? स्मॉल आर। और ये पूरा कैपिटल आर, तो ये कितना हुआ? आर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। हो गया। यस सर। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर अपॉन सी। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। अब आप, ये तो मैंने पूरा कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करके बताया है। आप अपने लेवल पे इसको कैसे याद रखोगे? सिर्फ एक सिंपल फिगर ऐसे याद रखो बस। अब ये देख करके आपको अपने आप ही याद आ जाएगा कि इस जोन में क्या सीन हुआ था। यहाँ पर ये बनाया था आपने आर माइनस स्मॉल आर बनाया, ठीक है। और ये क्या है? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। तो साइन अल्फा कितना हो गया? आर माइनस आर अपॉन सी, ठीक है। अब अल्फा यस। तो मिल गई, साइन इनवर्स ऑफ आर माइनस आर अपॉन सी, अल्फा मिल गया। अब अल्फा को लेकर के थीटा कैसे निकालोगे? 180 माइनस 2 अल्फा। यस। अब आपको पता है यहां पर भी अल्फा कट रहा है, यहां पर भी अल्फा कट रहा है, और आपको चाहिए सिर्फ इतना सा, ये थीटा चाहिए। सो योर थीटा इज नथिंग बट 180 डिग्रीज माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा। हो गई ना पूरी कहानी खत्म। तो अब ये आपके ऊपर है कि आपको, मैंने एक सजेशन तो ये भी दिया था, और कई बार दिया है, कि टॉपिक वाइज मैंने आपको नोट्स दे रखे हैं। आप एक अपना खुद का छोटा सा नोटबुक या एक छोटा सा बंच ऑफ पेपर्स को स्टेपल करके इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लिस्ट ऑफ फॉर्मूले बना लो, ठीक है। 3-4 पेपर लो, 3-4 नहीं, मतलब एक, टेक नियरली 8 to 10 पेपर्स, बोथ साइड्स ब्लैंक, और उसको स्टेपल करके उसको एक अपना छोटा सा एक वो बना लो, पुलिंदा, मतलब
रेफरेंस नोटबुक है रटने के लिए। और फर्स्ट लेक्चर नोट से लेकर के लास्ट लेक्चर नोट तक जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले हर टॉपिक में आ रहे हैं, टॉपिक वाइज उनको पहले लिख करके ले। और उसके बाद जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आपने रटे थे स्कूल टाइम पे, माय सिंसियर सजेशन इज इसमें भी आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के फॉर्मूले भी रटें, क्योंकि आप हर क्वेश्चन के लिए इतना टाइम नहीं डिवोट कर सकते। सारे डेरिवेशंस एक आध जगह पे तो चलता है कि भूल गए तो डिराइव कर लिया इस तरीके से, लेकिन हर जगह ये काम नहीं किया जा सकता। और फॉर्मूले जिसको रटे हुए होंगे वो तो क्वेश्चन करके निकल जाएगा, डेरिवेशन करने वाला तो तब भी पीछे ही रह गया ना। तो रटना कोई बुरी बात नहीं है, पहले चीज को समझ लो और उसके बाद रट लो तो डबल फायदा है। तो इसीलिए मैं तो बिल्कुल, हालांकि जो बहुत हाई लेवल के टीचर्स वगैरह हैं वो यही सजेस्ट करते हैं कि नहीं भाई रटना रटना हम अच्छा नहीं मानते, मैं तो आपको सीधे उल्टा कहता हूँ, रटो, रटे हुए होने चाहिए फॉर्मूले बिल्कुल, वरना एग्जाम में सब पीछे रह जाओगे। ठीक है, तो एनीवे अब यहां पर अपन ने ये पूरा डिस्कस कर लिया है थीटा कैसे निकालना है। तो पहले थीटा निकालें, म्यू की वैल्यू रखें, और उसके बाद T1/T2 से इस फॉर्मूले से T2 निकालें। तो चलो आप सबसे पहले तो मेरे को थीटा निकाल के बताओ इसमें कितना आ रहा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं अपन अभी। ये लगाओ आप तो, फाइंड द थीटा यूजिंग दिस, कैपिटल आर, स्मॉल आर, सेंटर वैल्यू सी, सेंटर डिस्टेंस आपकी दे रखी है क्या, ये देखो 4 मीटर्स अपार्ट। ये देखो टू पैरेलल शाफ्ट्स पे पुलिस की बात की गई थी विच आर 4 मीटर्स अपार्ट, दैट मींस द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ योर पुलिस दिस इज 4 मीटर्स। ये हो गया सी आपका, सी तो 4 मीटर है। कैपिटल आर कितना है, 120 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 60 सेंटीमीटर, और उसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 0.6, this is 0.6 meters, and the smaller pulley we already found it was 0.25 meters। बस अल्फा की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है। कितना आ रहा है, 36.86। सर 5.01। 5.02 डिग्री। आप देखो आपका कैलकुलेटर कहीं रेडियन पे तो सेट नहीं है। यस सर 5.02। 5.02 डिग्रीज, अगर डिग्रीज में सेट करे तो ये सर डिग्रीज में ही डिग्री। रखा करो, कैलकुलेटर को डिग्री में रखा करो जनरली आप। ठीक है, अब बताओ थीटा कितना हो गया फिर। सर 169 पॉइंट सर समथिंग। ठीक है, 169.96 डिग्री। यस सर। Yes, sir. अब अपन आते हैं अपने फॉर्मूले पे, T1/T2 इज इक्वल टू ई रेस टू पावर म्यू इंटू थीटा। अब यहाँ एक और प्रॉब्लम, फॉर्मूले को रटना एक अलग बात है और फॉर्मूले में उसको कैसे यूज करना है ये पता होना अलग बात है। यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर दैट इन दिस फॉर्मूला थीटा मस्ट बी इन रेडियंस। ये एक छोटा सा पंगा है यहाँ पे, we cannot help it, this formula is derived for theta to be in radians। इसमें डिग्री में अगर आपने थीटा डाल दिया तो इससे गलत आंसर आएगा आपका। तो अब मेरे को थीटा तो मिल गया है, अब थीटा को मैं इसमें यूज कैसे करूंगा, what should I do now, what is 169.96 degrees in radians, कैसे करते हैं बताओ। सर पाई बाय 180 से इंटू कर देंगे।
यस सर Yes. पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे 169.96 multiplied by pi by 180 brings your theta in radians. ठीक है, तो पहले तो ये कन्वर्जन करना पड़ेगा डिग्री टू रेडियंस में, और उसके बाद जो ये वैल्यू निकल रही है इसको यहां पर पुट करोगे। अब आप T1 की वैल्यू रखो, न्यू की वैल्यू रखो, थीटा की वैल्यू रखो और T2 निकालो। बताइए T2 कितना आ रहा है आपका? सर एक बार म्यू की वैल्यू सर वापस रिमाइंड करा दो 0.3। mu is 0.3 and T1 is 1855.3। सर 2.43 T1 is equal to सर T1 upon T2 is equal to 2.43 हाँ, तो T2 बताओ कितना है? अपन को T2 चाहिए। सर 763.5 समथिंग ठीक है, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से T2 जो था दैट वाज 762 न्यूटन। Yes, sir, इतना ही आ रहा है 763 पॉइंट। ठीक है, 763 आपको जो मिला है वो ले लो आप, तो ठीक है, ओके सर। अप्रोक्सीमेटली अपना आंसर करेक्ट है। 762 या 763 जो भी है आपका आ रहा है वो ले लो। सो वी विल ट्रीट बोथ ऑफ दीज आंसर्स एज करेक्ट। T2 लेने के बाद अपन ये सब काम कर क्यों रहे थे? वी वांटेड टू फाइंड द टॉर्क। टॉर्क ऑन ड्रिवन पुली, जिसमें ड्रिवन वाले का रेडियस रखा आपने, T1 दे रखा है, T2 अब आपको मिल गया। व्हाट इज द टॉर्क? सर 546.65 546 आ रहा है क्या? यस सर सर R 0.5 ले रहा है 0.25 है ना? सॉरी सर यस सर 273.325 Yes, this is correct. 273.32। यूनिट क्या है टॉर्क की? What is the unit of torque? अगर आंसर इतना छोड़ दिया तो एक नंबर माइनस। न्यूटन मीटर न्यूटन मीटर। अच्छा, अब टॉर्क तो निकल गया, अब आती है पावर की बात। पावर अपन ने देख लिया था, सिंपल फॉर्मूला है अपने पास कि अगर अपन को टॉर्क पता हो तो पावर मैं सीधे सीधे ऐसे लिख दूंगा, पावर इज इक्वल टू टॉर्क इनटू ओमेगा। यही डिसाइड किया था अपन ने। टॉर्क पता लग गया, ओमेगा कहां से लाएंगे? सर V इज इक्वल टू R ओमेगा एक बार इस पे चलते हैं। इस पे ओमेगा से रिलेटेड कौन सी इंफॉर्मेशन दी है एक बार आप पढ़ के देखो। रीड क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें डेटा देख करके बताओ कि ओमेगा मैं कहां से लाऊं। सर Run 200 sir, 200 RPM. Sir, 200 RPM. सर 200 200 RPM
अच्छा अब ये बताओ 200 आरपीएम कौन से पुल्ली का दे रखा है? ड्राइवर पुल्ली का। सर ड्राइवर पुली के। ड्राइवर पुल्ली का। तो पुल्ली। अगर 200 आरपीएम में यूज कर लूं तो मेरे को ड्रिवन पुल्ली का मिलेगा क्या? सर इसकी यूनिट चेंज करनी पड़ेगी वैसे तो। नहीं नहीं, यूनिट चेंज की बात तो बाद में करते हैं अपन। मैं ये पूछ रहा हूं, मेरे को तो ड्राइवर पुल्ली का आरपीएम दे रखा है, तो ड्राइवर पुल्ली का और ड्रिवन पुल्ली का आरपीएम सेम होता है क्या? भाई आपको पावर किस पे निकालनी है? ये जो ओमेगा का जो एक्सप्रेशन आ रहा है, टॉर्क तो आपने छोटे पुल्ली पे निकाला है ना, तो ओमेगा भी तो छोटे पुल्ली का होगा, तभी तो पावर आएगी। आप ये थोड़ी कर सकते हो कि भाई ओमेगा तो ले लिया बड़े पुल्ली का और टॉर्क ऑन स्मॉलर पुल्ली ले लिया, ये तो कोई बात हुई नहीं। यू हैव टू टेक द सेम पुल्ली। तो मैं तो ये पूछ रहा हूं कि आप, अच्छा चलो सबसे पहली बात तो ये देखें, पहले तो अपन कॉमन चीज पे आते हैं। बड़ी छोटी पुल्ली को छोड़ो, मैं तो ये आपको पूछ रहा हूं कि वन पुल्ली इज रोटेटिंग एट एन आरपीएम, ठीक है? एन आरपीएम पे एक पुल्ली रोटेट कर रही है, इसकी ओमेगा कैसे निकालते हैं ये बताओ पहले तो। सर एन अपॉन आर। न अपॉन आर? सर वी बाय आर से निकालेंगे ना। भाई इसमें वेलोसिटी वेलोसिटी बेल्ट कुछ नहीं डाल रखी मैंने। मैं तो आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि एक राउंड डिस्क है बस, और वो एन आरपीएम पे घूम रही है, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? इसमें कोई बेल्ट नहीं है, कोई लीनियर वेलोसिटी नहीं है, प्योर रोटेशन। आई जस्ट वांट टू फाइंड ओमेगा इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एन आरपीएम। कैसे निकालेंगे? ये फॉर्मूला देखा है क्या आपने? यस सर। अब या तो इसको रट लो, और अगर नहीं रटना तो इसका एक तरीका है इसको निकालने का। एक रोटेशन कितने रेडियन है? अच्छा एक रोटेशन कितने डिग्री है ये बताओ? 360। 360 डिग्री कितना रेडियन है? 2। सर 2 2 पाई। 2 2 पाई, सर। ठीक 2 है? पाई पर 6.28। तो एक रोटेशन अगर डिस्क करती है तो 2 पाई रेडियंस कवर करती है, ठीक है? तो अगर एन रोटेशंस कर रही है तो कितने रेडियंस कवर हो गए? सर 2 पाई 2 एन। पाई 2 पाई एन हो गया ना? अब सीधे सीधे अब ये बोल रहा है कि एन रोटेशंस एक मिनट में कर रही है, तो इसका मतलब 2 पाई एन रेडियंस एक मिनट में कर रही है। और अगर मैं इसको आरपीएम को आरपीएस में कन्वर्ट करना चाहूं, यानी कि ओमेगा की यूनिट किस में होती है? रेडियन पर सेकेंड होती है, रेडियन पर परसेंटेज। मिनट नहीं होती। तो मैं क्या करूंगा, इस 2 पाई एन को 60 से 60 से डिवाइड कर डिवाइड दूंगा। करते हैं सर। इस तरीके से आता है ये फॉर्मूला। दिस इज हाउ यू ऑब्टेन ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन बाय 60। ये रट लो आप, ठीक है? और नहीं रटना तो इस तरह का एक कन्वर्जन जो मैंने अभी समझाया वैसे कर लो। अब बात आती है, एन तो दे रखा है, एन इज गिवन राइट, 200 आरपीएम। यस सर, बट दे रहा प्रॉब्लम इज एन इज गिवन फॉर लार्जर पुल्ली। अब मैं क्या करूं, मेरे को तो छोटे पुल्ली का ओमेगा चाहिए, लेकिन एन मेरे को लार्जर की दे रखी है, तो छोटे वाले का एन निकाल सकता हूं क्या मैं किसी तरीके से? कैन आई फाइंड इट और नॉट? ये एक बेल्ट ड्राइव में फॉर्मूला सिखाया था आपको कि जो आरपीएम है कनेक्टेड पुल्लीज की, वो इनवर्स रेशियो ऑफ डायमीटर्स को फॉलो करती है।
तो अगर डायमीटर्स का इनवर्स रेशियो है तो रेडियस का भी इनवर्स ही रेशियो होगा। अब इसमें छोटा बड़ा का कोई बात नहीं है, N1 by N2 इज इक्वल टू D2 by D1, आरपीएम की बात है। यही सेम चीज ओमेगा पे भी आ जाएगी, क्योंकि ओमेगा जो है वो n के साथ 2π/60 से ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं, कांस्टेंट ही तो है ना। तो आप ये भी कह सकते हो ω1 by ω2 of any two connected pulley must be equal to the inverse ratio of their diameters। इसको आम आदमी की भाषा में कहा जाए तो ये कहते हैं कि अगर एक बड़े पुल्ली को और छोटे पुल्ली को आप बेल्ट से, गियर से, किसी से भी कनेक्ट करो, तो बड़ा वाला पुल्ली तो धीरे घूमेगा, छोटा वाला पुल्ली तेज घूमेगा। बस इतना सा कह रहा है ये इक्वेशन। ठीक है, तो अब आप एक काम कर सकते हो, कैपिटल N को यूज करके, जो कि किसके लिए दिया हुआ है, बड़े पुल्ली के लिए दिया हुआ है, बड़े पुल्ली के लिए, तो बड़े पुल्ली का ओमेगा निकाल लो। अब आपको D2 और D1 तो दोनों के पता है ना, छोटे और बड़े दोनों के, तो बड़े वाले पुल्ली का ओमेगा निकाल करके यहां रख दो, दोनों पुल्लीज का डायमीटर यहां पर इनवर्स रेशियो के हिसाब से रख दो, और उससे छोटे वाले का ओमेगा निकाल दो, और एक बार छोटे वाले का ओमेगा मिल जाए उसको यहां पे प्लेस करो और पावर निकालो। कितना आ रहा है करके बता दो मेरे को अभी। लेट अस टेक 1 or 2 एक्स्ट्रा मिनट्स, जस्ट डू द कैलकुलेशन। पावर निकाल के बता दो मेरे को सीधे सीधे। एन कितना दे रखा है, 200। ठीक है, तो पहले तो बड़े पुल्ली का ω1 निकालो, 2 इंटू पाई इंटू 200/60। सर 20.93। ठीक है, 20.94 रेडियन पर सेकेंड आ गया अपना ω1। ठीक है, अब इस फॉर्मूले पे आ जाओ। ω1 को तो रखो 20.94 डिवाइडेड बाय छोटे पुल्ली का, मस्ट बी इक्वल टू, छोटे पुल्ली का डायमीटर कितना है 50 और बड़े वाले का 120। अब इसमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि रेशियो है तो सेंटीमीटर और मीटर, सीधे सीधे 50/120 कर दो। अब इससे निकालो ω2। That should be 120 multiplied by 20.94 divided by 50। सर 50.25 50.25 50.25 सर। रेडियन पर सेकंड है ω2 50.25। Now multiply it with your torque। Multiplied by 273.32। कितना आंसर आया, 30,735.969। यूनिट क्या है इसकी, वॉट, वॉट्स। वॉट सर, वॉट। अब या तो इसको इतने वॉट्स लिख दो और डिवाइड इट बाय 1000, 1 2 3 डेसिमल पीछे जाएगा, 13.74 किलोवाट। किलोवाट, किलोवाट। ठीक है, आज का ये क्वेश्चन समझ में आ गया बेल्ट ड्राइव्स का। बेल्ट ड्राइव्स के अपने कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो गए, पूरे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए। ओपन बेल्ट, क्रॉस बेल्ट, एंगल ऑफ लैप, पावर,
ऑलमोस्ट पूरी बेल्ट ड्राइव का 50% सिलेबस अपन ने आज डिस्कस कर लिया। चलो बट कीप प्रैक्टिसिंग। आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल जो है मेरे आइडिया से काफी कम है। यू नीड मोर कॉन्फिडेंस इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स।